এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। তাহলে শুধু আমার সাথে একবার একটা টোটকা দেবেন। দু হাত তুলে সবাই বলুন, বলুন জয় শ্রীরাম। কালীঘাটে পৌঁছাতে হবে, বলুন জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আজকে নিশ্চিত হয়ে যান, এই বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলায় খেলা হবে বলছিল, খেলা শেষ হয়ে গেছে দিদি ভাই। পুরুলিয়াতে নয় বিজেপি, তৃণমূল শূন্য, কেউ রুখতে পারবে না। আর সারা বাংলায় খেলা হবে বলে যে আপনি ডাক দিয়েছিলেন, কার সাথে খেলবো? দিদিমণি 10 বছর আগে স্ট্রাইকার ছিল, আর এখন হুইল চেয়ারে বসে গোলকিপার হয়েছে, গোল আটকাবে বলে। দিদি ভাই 200 গোল বিজেপি দেবে পশ্চিম বাংলায়, 200 গোল ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিম বাংলায় দেবে। দেখুন এবছরের নির্বাচন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ফেরাতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে যে কাটমানি সিন্ডিকেট রাজ দুর্নীতি, আর সেই দুর্নীতিকে হটাতে হবে, জঙ্গলমহলের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। আর তা যদি কেউ করতে পারে, তাহলে একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে। আপনারা সেটা 2019 সালে বুঝে গেছিলেন, আর তাই বিপুলভাবে এই জঙ্গলমহলের মানুষ দুহাত তুলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছিলেন। আর কিছুদিন পর একদিকে যেরকম কেন্দ্র সরকারকে আপনারা প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, আর কয়েকদিন পর বিজেপি সরকারকে পশ্চিমবাংলা আপনারা প্রতিষ্ঠা দেবেন। অর্থাৎ ডবল ইঞ্জিনের সরকার হবে। আর এই ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে ডবল লাভবান হবে বাংলার মানুষ, গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ, এই জঙ্গলমহলের মানুষ। উন্নয়নে ভরিয়ে দেওয়া হবে। আর আমরা বলছি, কোন প্রকল্পের জন্য গরিব মানুষকে 1 পয়সাও কাটমানি দিতে হবে না, 1 পয়সাও তোলাবাজি দিতে হবে না, কোথাও কোনো সিন্ডিকেট রাজ থাকবে না। শুধুমাত্র গরিব মানুষের উন্নয়ন করে দেখাবো আমরা। আর তাই জঙ্গলমহলের মানুষ যেভাবে 2019 সালে আমাদের সমর্থন করেছিলেন, আজকের এই জনসভায় প্রমাণ করে দিয়েছে আগামী দিন আসল পরিবর্তন, বাংলাকে সোনার বাংলা করার জন্য এই জঙ্গলমহল থেকে শুরু হচ্ছে আসল পরিবর্তন। আর পাহাড়ে গিয়ে থামবে। আগামী দিন বিজেপির দিন, বিজেপি আসছে, তৃণমূল যাচ্ছে। সকলে ভালো থাকুন, সকলে সুস্থ থাকুন। একবার জোরে আমার সাথে একবার বলুন, বলুন ভারত মাতা কি। আমার ডান দিকে শুনতে পাচ্ছেন? বলুন ভারত মাতা কি। আমার বাঁদিকে শুনতে পাচ্ছেন? বলুন ভারত মাতা কি। আমার সামনে শুনতে পাচ্ছেন? বলুন ভারত মাতা কি। পিছন থেকে আওয়াজ আসুক, বলুন ভারত মাতা কি। সকলে ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সম্মানীয় রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আসিতেছে শুভ দিন, দিনে দিনে বহু বাড়ি আছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ। প্রত্যেকের ঋণ শোধ করার দিন আগামী 27শে মার্চ। এরপর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সবার প্রিয় নেতা সম্মানীয় অর্জুন মুন্ডা মহাশয়জি।
হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে আজকে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দেশের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের সর্বব্যাপী নেতা নরেন্দ্র ভাই মোদি মঞ্চে কিছুক্ষণ পরেই উঠবেন। আপনারা মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন হেলিকপ্টার এবং আপনারা সবাই তার বক্তৃতা শোনার জন্যে এইখানে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের এই সভায় আমাদের লোকপ্রিয় পুরুলিয়া জেলার সভাপতি মাননীয় বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সভাপতি রাজীব ব্যানার্জি মহাশয়, আমাদের এইখানের লোকপ্রিয় জনপ্রিয় আপনাদের সবার দুলার সাংসদ মাননীয় জ্যোতির্ময় মাহাতো মহাশয়, আমাদের এইখানে উপস্থিত পুরুলিয়া জেলার 9টি বিধানসভা থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। আরও অনেকজন আমাদের পার্টির পদাধিকারীরা আছেন। আপনারা সবাই মা এবং বোনেরা, ভাই এবং বন্ধুগণ, পার্টির কর্মী, পুরুলিয়া জেলার জনগণ, প্রেসের সাথী এবং সমস্ত নাগরিকগণ, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। একবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসার আগে আমি সবাইকে তার স্বাগতের জন্য হাত তুলে সবাই একবার জোর করে বলবেন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम,
मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मोदी जी स्वागतम, दुहात तुले बोलुन मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। बोलছি मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम। मोदी 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 मोदी, मोदी जी स्वागतम, मोदी 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 मोदी। মোদিজি আমাদের মধ্যে এসে গেছেন, আপনারা শান্ত হয়ে বসে পড়ুন। ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সামনে। আমাদের যুগ পুরুষ উনি আমাদের সামনে এসে গেছেন। সবাই শান্ত হয়ে বসুন, প্রথমে শান্ত হয়ে সবাই বসুন। এরপর সম্মানীয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে আমাদের প্রিয় সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সম্মান জানাচ্ছেন। সবাই শান্ত হন। শহীদ পরিবারের যে সকল সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে সম্মান জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি, সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি।
এরপর সবাই শান্ত হয়ে বসে পড়ুন। আপনারা স্বাগত জানাবেন ভারতীয় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া লোকসভার প্রিয় সাংসদ, প্রিয় নেতা, সম্মানীয় জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয়। भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम। আজকে তো আমার ভাষণ দেওয়ার কিছু নেই। যে বিশ্ব দরবারের সব থেকে লোকপ্রিয় নেতা পুরুলিয়ার যে পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন, ভারতবর্ষের এই শুধু নয়, সারা পৃথিবীর সব থেকে লোকপ্রিয় নেতাকে এই জঙ্গলমহলের পুণ্যভূমি পুরুলিয়াতে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন কেন্দ্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অর্জুন মুন্ডা মহাশয়, তাকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এক্ষুনি মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়জি, তাকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন আমাদের রাঢ়বঙ্গজনের পর্যবেক্ষক তথা রাজ্যের অন্যতম সহসভাপতি সম্মানীয় রাজু ব্যানার্জি মহাশয়। এখনই উপস্থিত হয়েছেন আজসু পার্টির সভাপতি সম্মানীয় সুদেশ মাহাতো মহাশয়, এবং আমাদের মাঝের সারিতে যারা আছেন এই বিধানসভার 9 জন প্রার্থী, তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলার সকল পদাধিকারীগণ, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি, এই প্রোগ্রামের খুব পরিশ্রম করে সহযোগিতা করেছেন ডক্টর রবীন্দ্র রায় মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের জেলার পর্যবেক্ষক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়, এবং সামনেতে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, বসে আছেন, রোদের মধ্যে আছেন, সেই লক্ষ লক্ষ পুরুলিয়ার বাসীকে আমি নমন করে এবং তাদের পক্ষ থেকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি স্বাগত জানাই। আমি সংক্ষেপের মধ্যে বলতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 6.5 বছর ধরে ভারতবর্ষের যা বিকাশ হয়েছে তার এই বিপরীত হয়েছে 10 বছরে পশ্চিম বাংলাতে। জঙ্গলমহলের বর্তমান পরিস্থিতি হাহাকার। হাসপাতাল আছে কিন্তু ডাক্তার নেই, স্কুল আছে মাস্টার নেই, রাস্তাঘাটের অবস্থা হাহাকার। পানীয় জলের যা সমস্যা, সেই সমস্যার বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত আছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যেরকম বিকাশ হচ্ছে, আগামী দিনেও পশ্চিমবাংলার যে 10 কোটি মানুষ, সেই মানুষের নয়নের মণি হিসেবে উনি পরিবর্তন চাইছেন। আমরাও সকলেই পরিবর্তন চাইছি। তার হাত ধরেই বাংলাতে পরিবর্তন ঘটবে, এবং তিনি যে ডাক দিয়েছেন আপকি বার 200 পার, সেই 200 পার বিধায়ক নিয়ে নবান্ন এবং আমাদের যে সেক্রেটারিয়েট সেটা দখল হবে। সেই জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাই কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জঙ্গলমহলের পুরুলিয়ার মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসছেন। 2 বছর আগেও লোকসভার সময় তিনি এসেছিলেন, এসে যেভাবে তাকে আপনারা আশীর্বাদ করেছেন, আগামী নির্বাচনেও যে পুরুলিয়ার 9টি বিধানসভা আছে, সেই 9টি বিধানসভার জন্য তাকে আশীর্বাদ করুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করুন। এবং আমি আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে এই সভাতে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাই একবার জোরদার বলবো, ভারত মাতা কে জয় শ্রীরাম, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় সাংসদ সম্মানীয় জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এরপর আমরা যার বক্তব্য শুনব, আমাদের ভারতবর্ষের
প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী নেতা, আমাদের প্রিয় নেতা, বিশ্ব নেতা, জননেতা, আমাদের সবার হৃদয়ে যিনি বাস করেন, মাননীয় সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। আপনারা কেমন আছেন? আমি এই রাঙ্গামাটির দেশে পা রেখে নিজেকে অনেক ভাগ্যশালী মনে করছি। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि आज जब देश आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है, तब मैं जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऋषि निवारण चंद्र, मानभूम केसरी अतुल चंद्र घोष, मानभूम जननी लावण्या प्रभा घोष की इस कर्म भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ।
कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा दीदी? दीदी ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोरेर पोर बोछोर धोरे एकटा सेतुओ तैरी করতে পারলো না তৃণমূল। এখন বলছে উন্নয়নের কথা। और इसलिए आज मैं पुरलिया के लोगों को, पूरे जगल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है। यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाई और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम
बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरुलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। यहां कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहां के छाऊ कलाकारों, यहां के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरुलिया और जगलमहल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं। इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं किस तरह
ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को, यहां के बच्चों को। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करेछ दीदी, ভয় দেখানোই তোমার অস্ত্র, রুখে দাঁড়াবে এবার বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। भाई और बहनों, आपका ये उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। तय है ना? तय है ना? इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे, खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले
विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে স্কুল হবে। দিদি স্কুল হবে। দিদি ও দিদি বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये बंगाल का मिजाज है। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है। लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए
कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना, बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है। वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है। लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्त हो उठे। साथियों, पश्चिम बंगाल तभी प्रगति कर सकता है जब विकास प्रक्रिया में सभी साझेदार एक साथ आ सके।
लेकिन दलित दीदी ने बंगाल के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों को कभी अपना साझीदार माना ही नहीं। बीते 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीते साल कोरोना के समय जब महीनों तक मुफ्त चावल और दाल का प्रबंध किया गया, तो दीदी के तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, आप याद करिए, जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए, अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है। बाकी एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। साथियों, इस क्षेत्र के हमारे संथाल भाई बहन, अन्य आदिवासी साथी वन अधिकारों को लेकर, कृषि उत्पादों के सही मूल्य को लेकर कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन दीदी ने उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। खेती और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले हमारे आदिवासी साथियों को ममता दीदी ने अपने हाल पर छोड़ दिया। जबकि भाजपा सरकार कहीं भी हो, केंद्र में हो या राज्य में, आदिवासी हितों की रक्षा, उनके बच्चों का कल्याण, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में रहा है। साथियों, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने आदिवासी हितों की रक्षा को और उनके कल्याण के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया था, आदिवासियों का अलग मंत्रालय। आदिवासी हितों के लिए केंद्र सरकार ने अलग बजट बनाया, अनेक योजनाएं शुरू की गई है। बंगाल में 36 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दलित, आदिवासी और पिछड़े परिवारों को मिले हैं। वन उत्पादकों की एमएसपी बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने वन उपज की संख्या में भी वृद्धि की है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी आदिवासी क्षेत्रों की पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने दलित परिवारों, एससी परिवारों के बच्चों को पढ़ाई और कमाई के बेहतर अवसर देने के लिए आर्थिक मदद बहुत ज्यादा बढ़ाई है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसका लाभ बंगाल के लाखों दलितों, लाखों मेरे आदिवासी बच्चों को भी होगा। आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सैकड़ों एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं।
यहां का एकलव्य स्कूल भी गरीब आदिवासी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी महापुरुषों ने योगदान का गौरवगान, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का गौरवगान, इसको आने वाली पीढ़ियां याद रखे, आदिवासी वीर पुरुषों को याद रखे, इसलिए उनके म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, युवाओं को रोजगार यहां बनने वाली भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा। यहां की भर्ती परीक्षाओं में जो खेल टीएमसी सरकार ने खेले हैं, वो सारे खेल बंद किए जाएंगे। जो युवा जो शिक्षक परीक्षा देने के बाद बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी दूर की जाएगी। राज्य सरकार में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, सभी की स्किल और ज्यादा बढ़े, वो और अच्छी तरह से बंगाल के विकास में योगदान कर सके, इस पर भी बहुत जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार के जो बाकी कर्मचारी हैं, उन्हें भी ममता सरकार द्वारा अनेक सुविधाओं और मानदेयों से वंचित रखा गया है। भाजपा सरकार में ये सारी विसंगतियां दूर की जाएगी। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। अब आप ही बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के आदिवासियों को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले, इसकी गारंटी है। दीदी चांद चोरीर खेला चलते थाको, आमरा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है, चूरीर खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरीर खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। चूरीर खेला, चूरीर खेला, चूरीर खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरीर खेला, चूरीर खेला। साथियों,
आपकी ये गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, आज मुझे वो परिवार आशीर्वाद देने आए हैं जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को सहा है। किसी ने अपने को खोया है, परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। ये पुरुलिया के वो परिवार है जिन्हें दीदी के विरोध की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इनके परिवार के नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया, गोलियां मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। खुलेआम ये धमकी दी गई कि बीजेपी का साथ दोगे तो यही होगा। ये किस तरह का राज चला रही हैं आप दीदी। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगा, बंगाल की पुलिस से आग्रह करूंगा, संविधान को सर्वोपरि रखे, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखे। मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हर भाजपा कार्यकर्ता को विश्वास दिलाता हूं, 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। क्रिमिनल, माफिया और भ्रष्टाचारी को कानून जेल के हवाले करके रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। 130 करोड़ देशवासी यही हमारे परमात्मा है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी सेवा के लिए हम जी जान से जुटे हैं। हम रामकृष्ण परमहंस की सीख को जीवन में उतारने वाले रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, जीव में ही शिव को देखो। हम जीव में ही शिव को देख करके 130 करोड़ देवता रूप देशवासियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा। वो सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई बंधु एक सम्मानित जीवन जिए। वो सोनार बांग्ला जहां की मां, बहन, बेटी सब सुरक्षित और भय मुक्त रहे।
वो सोनार बांग्ला जहां के युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार के भरपूर अवसर हो, वो सोनार बांग्ला जहां उद्योगों की कोई कमी न हो, वो सोनार बांग्ला जहां तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट जैसे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो, वो सोनार बांग्ला जहां गुंडे, अपराधी, उग्रवादियों की जगह जेल में हो, सड़कों पर न हो, वो सोनार बांग्ला जहां सबके पास एक आवास हो, हर घर सब जाल पहुंचे, आयुष्मान भारत का साथ रहे। आज पूरा बंगाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इसी सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मैं देख रहा हूं बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে, আসল পরিবর্তন আছে। इस बार भय नहीं सिर्फ जॉय, भय नहीं सिर्फ जॉय, पश्चिम बांग्लार मानुषेर जॉय। इस बार जोर से छाप, कमल छाप, इस बार जोर से छाप, कमल छाप। आपका एक एक वोट डबल इंजन की ताकत बनेगा। कमल छाप पर पड़ा हर वोट आशोल परिवर्तन लाएगा, सोनार बांग्ला का निर्माण करेगा। बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है, ये समय अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। ये हमारे बंगाल को कुशासन से मुक्त करने का समय है। ये दमनकारी अत्याचारी शासन से बंगाल को मुक्त करने का समय है। ये अपने आदर्शों और विचारों के लिए पूरी ताकत लगा देने का समय है। आपके पास सुनहरा अवसर है, आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का। हम बस मंजिल तक पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं। आशोल परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहां से अपने गांव, अपने घर जाएंगे और घर घर ये संदेश पहुंचाएंगे, एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे ना? घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मतदान करवाएंगे, कमल खिलाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় নেতা, বিশ্ব নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে ওনার সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য, মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা মঞ্চের সমস্ত নেতৃত্ববর্গকে সম্মান জানিয়ে এবং কর্তব্যরত পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রশাসনের সমস্ত ব্যক্তিকে, সাংবাদিক বন্ধুগণকে এবং সমস্ত
ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাগণ যারা এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভার কাজ এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে।